ltrim. This function removes leading space, example space from the left of the given string. Now इसका syntax है ltrim str, remove space from the left argument str with the initial characteristics removed. Okay, let me open workbench, MySQL workbench. Okay, so now we have to start with ltrim. So suppose if I'm typing select select, then ltrim is a left trim, means if I type something like this, space, now my name is Hardik, and if I run this, if I execute this by semicolon, if I execute this function, okay, so ltrim then this, and यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैंने जो लिखा था उसमें क्या किया था, मैंने ltrim लिखा है, स्पेस किया है, जब यहाँ आउटपुट आ रहा है तो वो स्पेस हट गया. ओके, जब भी आउटपुट आएगा इसका तो वो स्पेस कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्दिक स्पेस, या इफ आई एम टाइपिंग समथिंग लाइक दिस, माय नेम इज हार्दिक, नाउ आई एम एग्जीक्यूट दिस, मैंने यहाँ पे काफी स्पेसेस रखे हैं, लेट क्रिएट सम मोर स्पेस ओवर हियर. जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तब मेरा आउटपुट होगा माय नेम इज हार्दिक, ये मेरा आउटपुट है. ltrim में जितना भी स्पेस है, जितना भी स्पेस लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो सारा का सारा स्पेस रिमूव हो जाएगा जब आप ltrim यूज करोगे. Select ltrim is used to remove the space from a left side. Remove space from the left of argument str will initially characters remove. यहाँ पे initially characters जो भी string में होंगे उनको left side की तरफ add कर दिया जाएगा. Then the next function which we have is a rtrim. This function remove trailing spaces, space from the right of a given string. यहाँ पे ltrim to left की जो space है उसे remove करता है, और rtrim को यूज करके आप right की जो spaces है उसे remove कर देते हो. Okay, let's again see an example of this also. So over here again I am typing select rtrim, then double quotes, again I'm typing my name is HARDIK Hardik, and then I'm give space over here, and again I'm typing something like this, again double quote, I'm typing hello friends, semicolon, now I am execute this. So over here you can say my name is Hardik, hello friend. यहाँ पे बीच में जो राइट हैंड का स्पेस, जो मैंने राइट साइड में स्पेस किया था, उसने उस स्पेस को रिमूव करके इन दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दिया, माय नेम इज हार्दिक एंड हेलो फ्रेंड. तो यहाँ पे जो राइट हैंड स्पेस था वो अपने आप कट हो गया, एंड यहाँ पे आउटपुट में सब कुछ एक साथ आ गया. दिस इज द वे rtrim और ltrim के थ्रू हम लेफ्ट एंड राइट साइड की जो स्पेस है उसे रिमूव करा सकते हैं. नाउ द थर्ड आउटपुट, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज, okay, so you also return string with a trailing space remove after the last characteristics. Now we have a trim. This function remove leading and trailing space. Okay, if you want trim, if you use trim as a function trim, it will remove the left hand side and right hand side, both the spaces. So अगर आपको ltrim rtrim यूज नहीं करना तो आप खाली trim function को यूज करो. यहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों साइड का जो भी स्पेस होगा वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, एंड आपके पास आउटपुट सेम आएगा. So यहाँ पे return the strings str with all rstrim prefix and or suffix are removed if none of the specifier both leading or trailing in both is assumed. rstrim is optional and if not specified space are removed. Okay, so let's see this also. यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर आप यूज करते हो trim को, so यहाँ पे मैं इसको select कर रहा हूँ. अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ select trim trim, select trim डबल कोट्स, मैं यहाँ पे भी स्पेस ऐड करूंगा, यहाँ पे भी स्पेस ऐड करूंगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में स्पेस ऐड करता हूँ, and I'm just typing over here my name is Hardik, and now I'm giving semicolon over here. मैं इसे execute करता हूँ, so यहाँ पे आउटपुट आ गया my name is Hardik. यहाँ पे जो लेफ्ट एंड की स्पेस थी और जो राइट हैंड की स्पेस थी वो दोनों स्पेस को रिमूव करके डायरेक्टली मेरे पास ये आउटपुट आ गया my name is Hardik. So हमने अभी 3 स्ट्रिंग के फंक्शन देखे. जो फर्स्ट फंक्शन था ltrim क्या करेगा, वो रिमूव करेगा स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट साइड. देन हमने देखा rtrim करेगा rtrim रिमूव स्पेसेस फ्रॉम राइट हैंड साइड. Then the next thing which we have is what is trim. थर्ड ऑप्शन था trim क्या करेगा, if you want to remove the spaces from left as well as right side तो आप क्या इसको trim, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की जो भी स्पेसेस होगी उसको रिमूव कर देगा. Now after that the next function which we have is instr. This function searches for given second string into the given first string. Means यहाँ पे आपको लिखना है instr string 1 comma string 2, search string 1 for string 2 and return the position argument and this. So इसका एग्जांपल है select in str, यहाँ पे लिखा हुआ है corporate floor comma और as in string. So जिस पोजीशन पे वहां पे लिखा होगा वो, मतलब ये सर्च करेगा string. जैसे जो यहाँ पे corporate लिखा था तो यहाँ पे or जो है, यहाँ पे or कितनी बार थे, 2 बार थे, तो यहाँ पे or इसमें जो था उसे सर्च किया.
फर्स्ट स्ट्रिंग लिखो और उसमें अगर आपको सर्च करना है कि वो स्ट्रिंग कहां पर अवेलेबल है, सो आप क्या करोगे, चलो लेट्स से इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा आपको। अबाउट इन स्ट्रिंग क्या होता है, इन एसटीआर क्या है, SCLED सिलेक्ट स्पेस INSTR इन स्ट्रिंग, देन यहां पे सबसे पहले स्ट्रिंग डाल रहा हूं मैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं सपोज टाइपिंग SCRVER सर्वर, एंड नाउ कॉमा और डबल कोट्स पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट जो सर्च करना है, आई वांट ER इस सेंटेंस इस वर्ड में कितनी बार यूज हुआ है, व्हाइल आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2, वाई ER एंड ER से 2 बार मिला। सो आप क्या करते हो, आपको अगर सर्च करना है, सपोज आपके पास बहुत बड़ी स्टूडेंट की लिस्ट है एंड उसमें आपको पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, तो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हो। ये फंक्शन इन स्ट्रिंग क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड का जो भी आपको सर्च करवाना है, मतलब आपको उसमें कोई वर्ड कोई लेटर किसी को सर्च करवाना है, तो वो कितनी बार प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे सर्च करवा देते हो बाई यूजिंग ER। मतलब यहाँ मैंने से सर्वर लिया और उसमें ER चूज किया, तो ER यहाँ पे भी था और ER यहाँ पे भी था, 2 बार आ गया। नेक्स्ट फंक्शन इज द लेंथ फंक्शन। आपको चेक करना है किसी भी कैरेक्टर का लेंथ, कोई भी आप वर्ड लिखे उसका लेंथ, उसके लिए आप लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हो। सो चलो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे हम टाइप करेंगे SELED सिलेक्ट, देन ब्रैकेट्स और ब्रैकेट एंड LEN लेंथ, सिलेक्ट लेंथ। नाउ यहाँ पर हम लेंथ लिखते हैं, किस चीज की लेंथ लिखनी है हमें, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लेंथ ऑफ दिस सेमीकोलन, एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ लेंथ आ गई 6। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट करके लिखता हूँ नेक्स्ट यहाँ पे, एंड अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सो यार लेंथ हो जाएगी 17। नाउ इफ काउंटिंग 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे टोटल ये 16 हो रहा है, बट ये जो स्पेस हमने बीच में ऐड की ये उसे भी काउंट करता है। सो टोटल लेंथ यहाँ पे जाएगी वर्ड की 17। सो इस तरह से आप सिलेक्ट लेंथ को यूज कर सकते हो। सिलेक्ट लेंथ फंक्शन से आपको कोई भी वर्ड की लेंथ मिल जाएगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे उस वर्ड में कितने हैं। अगेन नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट, द फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर्स ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाइड LEFT STR कॉमा लेंथ। अगर आपको मतलब लेफ्ट से आपको कितना पार्ट कट करके लाना है, सपोज इसको अगर इस तरह से लिखें SCLED सिलेक्ट LEFT लेफ्ट ब्रैकेट्स और ब्रैकेट एंड, नाउ इफ आई एम टाइपिंग समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ HARDIK कॉमा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा 3, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से तो मेरे आउटपुट से HAR आएगा। लेफ्ट से कितना कट करना था वो आउटपुट, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 4 कैरेक्टर जो लेफ्ट से वो कट होकर मुझे मिल जाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ कोई बड़ी स्पेलिंग लिखी हुई है एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे वापस करूंगा सेम आएगा, बट अगर मैं यहाँ से कैरेक्टर्स को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे 10 कर दूं, तो 10 कैरेक्टर्स लेफ्ट से कट होकर मेरे पास आ जाएंगे। सो ये क्या करेगा, लेफ्ट स्ट्रिंग दिस फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेफ्ट मोस्ट से हमें कैरेक्टर्स लाके देगा हमारे स्ट्रिंग के लिए। देन आता है राइट, सिमिलरली राइट भी वही वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे राइट लिख दूं एंड मैं अब अगर यहाँ से रन करूं तो वो राइट से मुझे यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से 10 जो होंगे वो मुझे वो यहाँ से ऑप्शन देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 716, आई एम यूजिंग 16 ओवर हियर एंड मैं एक्सिट करूंगा तो मुझे खाली एक एच छूट जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा। हमें पता है ये जो लेंथ है इसकी लेंथ 17 थी। इफ आई एम टाइपिंग 10 ओवर हियर तो वापस वो महेश्वरी तक आके मुझे कंप्लीट दे देगा। सो दिस इज द वे थ्रू विच आप लेफ्ट एंड राइट फंक्शंस को यूज कर सकते हो MySQL में to cut the left part or right part of a word. Now after that the next हमारे पास MID, this function return a substring starting from the specified position। यहाँ पे आपको string लिखना है, position लिखनी है एंड उसकी लेंथ, आपको 3 चीजें यहाँ पैरामीटर पास करनी है। like MySQL select substring quadratically 5,6, so 5 5th पोजीशन स्टार्ट होगा और 6 तक की लेंथ लाएगा। सबसे पहले आपको पोजीशन कौन सी कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पोजीशन लिखा 1 2 3 4 5, तो ये 5th आ गया R एंड कहां तक लेना है 5 से 6 तक, मतलब R से 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे RATICA हो गया, ये पूरा का पूरा मेजर यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे चलो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। यस MID mid, दिस फंक्शन रिटर्न अ सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन, सिंटैक्स है mid देन स्ट्रिंग, जो आपको स्ट्रिंग टाइप करनी है कौन से पोजीशन से स्टार्ट करना है, कितनी लेंथ तक आपको स्ट्रिंग को कट करना है, या मतलब तो कितने कैरेक्टर आपको लेके आने। Returns a substring from a str starting from position and having a number of character as a length. Mid then str then position then len is a synonym for substring this, say substring a synonym से एक तरह का mid। So चलो let's try this as an example। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा select यहाँ पे आएगा MID mid, सबसे पहले string लिखनी है, so I'm typing again comma
Now I want to start from 8 and end till 10. Let's check कितना आता है यहाँ पे, क्या आउटपुट आएगा. So मेरे आउटपुट में महेश्वरी आ रहा है, and if I am starting from 1 and I go till 6, तो मेरे पास नाम हार्दिक आ जाएगा. अगर मैं यहाँ 7 कर दूंगा तो 7 में वो ब्लैंक स्पेस देगा मुझे, वहां पे एम नहीं आएगा बिकॉज के बाद एक स्पेस है, तो इसने वो स्पेस काउंट कर लिया, इसने एम नहीं दिया. बट इफ आई एम टाइपिंग 8 तो एक स्पेस के बाद एम लिखा हुआ जाएगा. सो बाय यूजिंग मिड आप अगेन आप कर सकते हो. आपको एक स्ट्रिंग लिखनी है, उस स्ट्रिंग का कितना पार्ट कट करना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है पहले आप पोजीशन दोगे, और कहां तक आपको स्ट्रिंग को कट करना है उसका आप फाइनल एक वैल्यू दोगे. सो MID इज अवर फाइनल फंक्शन फॉर स्ट्रिंग. तो बेसिकली स्ट्रिंग में हमने कितने फंक्शंस देखे. सो MySQL स्ट्रिंग में काफी सारे फंक्शन थे. स्टार्टिंग हमने की थी कैर से. कैर क्या करेगा, सो कैर आपके न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, न्यूमेरिक वैल्यूज को बाय यूजिंग ASCII वैल्यू. देन नेक्स्ट हमने देखा था कॉन्केटिनेशन. कॉन्केट क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देगा. बाय यूजिंग कॉन्केट हम दो स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं. लेटर हमने यहाँ पे चेक किया था लोअर केस. लोअर केस से क्या होगा, अगर यूजर ने कोई चीज अपर केस में सेंड की है बट आपने ऑलरेडी उसको प्रीडिफाइन लोअर केस में चेक करने रखा हुआ है, आपने चेक फंक्शन यूज किया बाय यूजिंग लोअर केस, तो आप क्या करोगे, बाय यूजिंग दिस फंक्शन आप उस केस को लोअर क्रिएट कर दोगे, लोअर में लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे उस नेम को या जो भी यूजर इंसर्ट कर रहा है उस चीज को. देन आता है सबस्ट्रिंग. सबस्ट्रिंग क्या करेगा, तो सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर पार्ट को कट करके आपको लाके दे देगा. लेटर हमने उसके बाद देखा था अपर केस. अपर केस क्या करेगा, सो अपर केस कोई भी लेटर जो यूजर इंसर्ट करेगा, अगर यूजर ने सब कुछ लोअर केस में इंसर्ट किया है तो अपर केस उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा अपर पार्ट में. एल ट्रिम क्या करेगा, एल ट्रिम रिमूव करेगा स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, वेयर एज आर ट्रिम रिमूव करेगा स्पेस फ्रॉम राइट साइड. एंड जो ट्रिम है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, एल ट्रिम एंड आर ट्रिम. मतलब अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है, आपने कोई वर्ड लिखा है, उसके लेफ्ट में भी बहुत स्पेस है, राइट में बहुत स्पेस है, ट्रिम फंक्शन दोनों तरफ की जो स्पेसेस होगी लेफ्ट एंड राइट की उनको रिमूव करके आपको प्रॉपर आउटपुट दे देगा वर्ड्स में. लेटर हमारे पास इसके बाद कौन सा ऑप्शन था, इन एसटीआर. इन एसटीआर क्या करेगा, ये सर्च करवाएगा. आपने जो फर्स्ट स्ट्रिंग लिखी है, कॉमा करके आप लिखोगे स्ट्रिंग में कोई वर्ड्स जो आपको सर्च करने हैं, तो वो वर्ड अगर अवेलेबल होंगे तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे. इफ दे आर नॉट अवेलेबल तो आपको वहां पे जीरो आउटपुट मिलेगा. देन नेक्स्ट हमने सर्च किया था, हम चेक किया था लेंथ. लेंथ क्या करेगा, लेंथ फंक्शन आपको हेल्प करवाएगा, प्रोवाइड कर देगा कि नंबर ऑफ लेंथ इन योर स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग में कितनी लेंथ अवेलेबल है ये आपको फिगर करके देगा. कौन सी चीज, लेंथ फंक्शन. आफ्टर लेंथ व्हाट वी हैव, सो आफ्टर लेंथ वी हैव लेफ्ट एंड राइट. हमारे पास ये दो डिफरेंट ऑप्शन थे. लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट से अगर आपको आपने स्ट्रिंग लिखी और आपको उसका लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है तो आप लेफ्ट यूज करोगे एज अ फंक्शन. देन हमने राइट देखा था, सिमिलरली राइट भी वही वो करेगा. आप एक स्ट्रिंग लिखोगे, उसकी लेंथ लिखोगे तो राइट से उतना पार्ट कट करके आपको लाके दे देगा. The final and the last, yes, the final and the last option in a string or character function in MySQL is MID mid. Mid में क्या करना है, आपको स्ट्रिंग लिखना है, उसकी पोजीशन लिखनी है और लेंथ लिखना है, वहां तक वो आपको कट कर वैल्यू दे देगा.